to introduce our first speaker, Mr. Palak Madhwani. Ladies and gentlemen, Mr. Palak is an enthusiastic learner, voracious. Yes, you can start the video. Yeah, Mr. Palak is an enthusiastic learner, voracious leader, thoughtful blogger, pro-network, proactive leader, and of course, an influential speaker. Mr. Palak has been the past lead visitor, host, vice president, and president of BNI Alchemist. Currently, he is the co-founder and CEO of Monkey Ads and Academy. I request Mr. Palak to kickstart the session with its worthy insights upon the topic entitled as Digital Marketing and its Importance in Franchising. The platform is yours, sir. Hi, hello everyone. How are you? Am I audible clearly? Yes, sir, you are clearly audible. So, brother, can you tell me your name so that we can interact? Because this is going to be a one-way zone, and I need someone to interact with. Ji. So, hi, Mr. Palak. This is Paramveer Singh Chahal, and I'll be hosting the event. And I feel privileged to be interacting with you. So, we can Hello, definitely Mr. get Paramveer. started. Ji, Mr. Thank you so much. So I'm going to share my screen, and you are going to help me as the audience, so that Yeah. you can us sure. there out on the auditorium, virtual auditorium. Sure. Can know more and get the details in a better way. Ji. It's just that I am visible to you. Otherwise, the listeners and attendees can definitely see and listen to you. So. Fine, that's okay. I am aware about it. I'll request you to allow me to share the screen to the audience who are listening to us in the auditorium. This is the first slide which I always share with the audience. Your feedback is important to us, so I'll request whatever you're listening to the session which I'm delivering right now on digital marketing and the importance of it in franchising. I'll request you to note down 3 key takeaways from this session, and also let us know what we should include in our sessions in future. So note it down during the session itself, and you can probably message that in the chat box of your auditorium which we are using, the virtual expo, or you can even scan to connect with me and message me on WhatsApp what you have learned today. It will really help me to build my future sessions more fruitful. So moving further, if I ask you, Paramveer ji, name the 3 biggest continents in the world. What, according to you, or what do you think? Which are the 3 biggest continents in the world? In terms of area, sir? Yeah, definitely. In terms of area, or even in terms of population. Okay. I think, of course, when it comes to population, we don't lag behind. So, of course, Asia. So Asia, right? Asia, absolutely. Then which is the second? Please mind my general knowledge, but it should be America, I guess, because there is North America and South America. So right. So America, Africa, whatever. Europe. Third must be Africa. Yeah. Might be coming in your mind, right? Ji. So I'll tell you, Asia is definitely the largest, and still Facebook has to work a lot to cross that. But the second largest continent is now Facebook, with Asia having over 467 crores of population, and Facebook having 274 crores. So that's something which is a huge user base which social media or especially Facebook is having. So that is why it is so important to have digital marketing in your marketing mix, and probably a lot of companies have completely put the entire marketing as digital marketing. The rest other marketings are on the second step now. Right. So guess the number of people available online in India according to you, Paramveer ji. आपके हिसाब से कितने लोग online होंगे India में? You mean just limited to our expo, or like in general? In general, using social media. I think our present generation, I mean the coming generation, is all on online, right? It might be possible that elderly ones might not be there on it, and we are not only Hindustan but Yangistan as well. So I believe considerable. Some few crores. Right? Easily should be. So just to share with you and the audience out there, 63 crore people in India use, or I would say 63 crore users are there in India who are using social media or internet in one or the other way. Right. Moving further, so I am taking this all quickly because these are stats which are there to build a platform
So I'm taking it fast because it is something which is already aware to a lot of people, and we need to talk more about how we can encash this audience available there. Guess the amount of transactions happening in online in India, Paramveer ji. आप मतलब आप guess करिए, bluff करिए, कोई issue नहीं है. जी. A lot of people are having wrong notion. जी. Sitting there, so उनको भी वो एक correct notion में आना है. जी. तो कितना amount of transaction होता होगा? Should I answer in terms of percentage, sir, or in numbers? Nah, amount in dollars probably, if you want to answer. As a layman, probably in some billions of dollars. And $589.6 million dollars, $589.6 million का transaction हो रहा है, और हर साल 34% से ये बढ़ रहा है. So yeah, it is bound to increase. Yeah, of ये course. बात हम इसलिए कर रहे हैं ऑडियंस के साथ क्योंकि ये जो पेमेंट्स हो रहे हैं, लोग ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं या ऑनलाइन गूगल पे या पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी ट्रांजैक्शंस ये इंडिकेट करते हैं कि लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी गोइंग डिजिटल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनी बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपल हु आर गोइंग टू एक्सपैंड फ्रेंचाइजीज, बट इवन एनी अदर बिजनेस, दे ऑल शुड फोकस ऑन बीइंग डिजिटल. जी. So now this is going to be easy, Param ji. मुझे लग रहा है मैं आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, आप शायद प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए, but it's okay. Really very supportive, and I'm. Which is the first social media platform which probably you will choose for your brand building? I think the selection should be based upon the number of users on the platform, and I believe Facebook is probably should be the right platform, or YouTube, I believe, because that is where users. Yes. So absolutely perfectly pointed out, Paramveer ji. The most used platform is YouTube. The highest number of users are on Facebook. So that's something. Both of them have their own strength. So Facebook and YouTube definitely should never be missed out in your promotion. But recently, Instagram has been catching up very fast, and a lot of brands have literally focused their campaign, Instagram driven campaigns, Instagram driven content. And along with them, one of the most important one-to-one marketing communication tool is WhatsApp. So that is also a must in preparing for your marketing communication. So that's something which everyone must note down. The audience there, YouTube, a lot of people are not working on YouTube because it's a little difficult to build your brand on YouTube, because you need to work with videos. So I request that you have shorts on YouTube. We're going to talk more about it, and you have video formats on YouTube, so you can use them to build your brand. जी. What type of content do you promote on your brand online? So if you can if people are mentioning something on the chat box, you can even share those things. And if there is something which coming, you have an opinion, then you can also tell me. You'll definitely get the messages delivered to you, whatever I get from the chat box. So please don't worry. So when we see, when I usually do a meeting with my client or a lot of people where I conduct workshops, मैं जब उनसे पूछता हूँ कि कौन सी तरीके का content promote करना चाहिए ऑनलाइन, तो major of them have कि हम हमारे product के बारे में post करते हैं, offers डालते हैं, और हम festival wishes डालते हैं. So that's definitely one of the way of doing it. But the most important reason why people come online is to find information, and that's something which we must empathize with while we communicate online. So हम लोग क्या, जैसे आज का ये वेबिनार या सेमिनार हम बोल रहे हैं, वेबिनार बोल रहे हैं, ये वेबिनार किस वजह से हो रहा है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग को फ्रेंचाइजिंग या फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट करने में कैसे यूज कर सकते हैं. सो दैट इज वी आर सॉल्विंग अ हाउ टू questions of people. So that's something which is going to work a lot more if you develop your content and your communication in those lines. Nice. So this is the screen which everyone can take a screenshot probably of. You will see YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, all of these platforms, उनके जो users हैं उनके बारे में हमने statistics यहाँ पे share किए हुए हैं. But often people get carried away in trying to maintain all of the platforms and even more of them, and they are not able to maintain a consistency over all of these. So probably I would say you can start with Facebook and Instagram, and then if you have video के लिए अगर आपकी टीम तैयार है या आप कर पा रहे हैं वीडियो, तो डेफिनेटली यूट्यूब. तो ये 3 प्लेटफॉर्म अगर आप कर लेते हैं तो मोर और लेस 98% ऑफ द ऑडियंस आप कवर कर लेते हैं, जो चाहे वो लिंक्डइन पे है या चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म्स पे है.
Right. तो अब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है एग्जैक्टली, यानी डिजिटल दुकान या डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग डिजिटल दुकान यूजुअली में हमारे टर्मिनोलॉजीज में बोलते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग इज अ जनरल ग्लोबल वर्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का अर्थ होता है जो आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट्स आती है, स्पॉन्सर्ड एड लिखी हुई आती है, वो एडवर्टीजमेंट्स जो होती हैं वो एक प्रॉपर प्रोसेस से की जाती हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके अंदर आप टारगेटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप यू कैन डू चूज द ऑडियंस व्हिच यू वांट टू कनेक्ट विद, सो दैट ऑल कम्स अंडर सोशल मीडिया मार्केटिंग। देन द सेकंड पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ होता है आप रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फेस्टिवल विशेस भी करते हैं, या अपने सक्सेस स्टोरीज के बारे में हाईलाइट करते हैं, which is regularly posted on your timeline, and that all comes under social media optimization। और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी इंटीग्रेसीज हैं जो मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड्स पे भी दिखाने वाला हूँ। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सर्च इंजन यानी सबसे बड़ा सर्च इंजन, जो ग्लोबली सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो है गूगल। उसके अलावा बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं, बट सबका बाप एक ही है, विच इज़ गूगल। और गूगल के अंदर जब भी कोई सर्च करता है, समवन सर्चेज लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, सो मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी लिखूंगा तो मुझे गूगल एक कुछ रिस्पॉन्सेज देगा, सो दैट इज कॉल्ड द सर्च इंजन, एंड द रिजल्ट्स व्हिच दे अपीयर ऑन अ पेज, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। तो ये जो सर्च इंजन के रिजल्ट्स हैं, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स जो करनी है हमें, उसको सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं जी। उसके अलावा गूगल के थ्रू हम डिस्प्ले एड्स भी कर सकते हैं, जो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओनली। सो डिस्प्ले एड्स जो होती हैं वो आपके वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www. आप कुछ भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक आप इमेजिन कर सकते हैं कि इट्स अ रियल एस्टेट स्पेस, डिजिटल रियल एस्टेट स्पेस, और सब ने अपनी अपनी जगह खरीद के रखी है, और सब अपनी अपनी जैसे अगर आप सूरत में VR मॉल में जाएंगे तो मॉल में स्क्रीन लगा हुआ है, उस स्क्रीन पे एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं। वैसे ही वेबसाइट्स पे आप जाते हैं तो वो वेबसाइट पे भी अगर आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तो वो होती है डिस्प्ले एड्स। स्पेशली कंटेंट पब्लिशिंग वेबसाइट्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया या NDTV है, या इस तरह के न्यूज़ मीडिया पब्लिशिंग वेबसाइट्स है, या गाना.com या savan.com, ये सारे वेबसाइट्स जहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं, ये सारी एडवर्टीजमेंट्स मेजरली गूगल के थ्रू होती है। सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। देन कम्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हमने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात की, ऐसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम अगर बात करें तो अगर जैसे कोई व्यक्ति, अगर हम फिजिकल दुनिया की बात करें तो कोई अगर मुझसे डिजिटल मार्केटिंग करवाना है तो कोई भी क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट है मेरा, वो अपने नेटवर्क में पूछता है। पहले के ज़माने में ये होता था कि भाई पलक का काम कैसा है, तो ज़्यादा अगर लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं तो वो मुझ पर ट्रस्ट कर पाते हैं, राइट। उसी तरह से गूगल के सर्च इंजन पे जो रिजल्ट्स ऊपर आते हैं वो उस तरह के रिजल्ट्स होते हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में। सो दैट्स हाउ वी डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो गूगल देखता है कि आपकी वेबसाइट के बारे में ज़्यादा बातें कहाँ हो रही है और कौन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे बारे में कोई एक स्टार्टअप है या एक नया व्यक्ति है, वो बोल रहा है, उसके कंपेयर में एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर है या एक बड़े बिजनेसमैन है या एक बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन बोल रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा मेरे रिकमेंडेशन या मेरे बात पे। तो उसी तरह से गूगल भी आपकी वेबसाइट कौन सी वेबसाइट्स पे रिकमेंड हो रही है उसकी रैंकिंग के हिसाब से आपको ज़्यादा वेटेज देता है। ये जो सारी प्रोसेस, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मैंने बहुत सरल तरह से समझाने की कोशिश की है, बट इसको अचीव करना एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, एंड दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने देखा है कई ब्रांड्स इसमें कैरीड अवे हो जाती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट द फर्स्ट स्टेप यू टेक। द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली you take social media marketing optimization and search engine marketing, and then comes search engine optimization. आप सोचोगे कि मैं SEO, often people come and ask कि हमें SEO करवाना है, बट पहले आपका SMO और SMM ही तैयार नहीं है, या आपका SEM भी आपने नहीं किया है, तो प्रोबेबली वहाँ पे ज़रूरत है। SEO लोग सोचते हैं कि फ्री में होता है, तो ऐसा नहीं है। SEO करने में जो कॉस्ट लगेगी, कंटेंट बनाने में जो कॉस्ट लगेगी, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। देन कम्स लीड क्वालिफिकेशन प्रोसेस। अगर आपकी अगर आपकी लीड जनरेट होती हैं, वो लीड्स आप वेरियस वेज से आप जनरेट कर पाते हैं। उसको आपको क्वालिफाई करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है, जिसमें आपकी टीम उसको
फॉलो अप करके क्लोजर करती है। अब ये प्रोसेस को यूजुअली लोग एक्सेल से मेंटेन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। अब वो ज़माना नहीं है कि लोग एक्सेल में लीड्स को मैनेज करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग CRM एक प्रोफेशनल टूल होता है, इसका यूज़ करके लोग अपनी लीड्स को क्वालिफाई करें। So that is also part of digital marketing, which usually is done by the company in-house. जो कंपनी अपना करवा रही है, अगर एजेंसी से डिजिटल मार्केटिंग करवा रही है तो यूजुअली लीड जनरेशन तक का पार्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का होता है। उसके बाद का क्वालिफिकेशन का काम जो है वो कंपनी जो जिसकी मार्केटिंग हो रही है वो करती है। देन डिजिटल दुकान, यानी अगर आपकी वेबसाइट बन रही है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कीवर्ड्स और ऑन पेज SEO लेके बनाए वेबसाइट को, ना कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाए। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, अगर आप भरोसा रख के वेबसाइट बनाएंगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग इंक्वायरीज ऑन योर वेबसाइट फॉर इवन डायरेक्ट B2C ऑर्डर्स, एज वेल एज you'll start getting inquiry for franchisee if you have clearly mentioned that you are open for franchisee, you have given a call to action to them कि हम franchisee दे रहे हैं, right? कितना समय हो चुका है परमवीर जी? जी it's 12:40, बट आप अपना कंफर्ट देखिए। You can extend to 10 minutes I believe. नहीं, मैं टाइम पे ही खत्म करता हूँ परमवीर जी, इसलिए मुझे एग्जैक्ट टाइम बताइए, मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए जी। अगर 12:45 तक होगा तो बहुत बढ़िया, बट 12:50 तक भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। 12:50. So now we are going to quickly talk in the last 10 minutes about digital marketing and franchising. So digital marketing क्या है, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में समझा दिया है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप परमवीर जी आप रिस्पॉन्ड जब मैं पूछूं तब करिए। जी। सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने आप सबसे बात कर ली है। आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या जो भी कंटेंट की डिटेलिंग चाहिए तो आप मेरा ये QR पे दिख रहा है, उसको स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं या उस पर मेरी वेबसाइट से सारी चीज़ें रेफर कर सकते हैं। अब हम फ्रेंचाइजिंग के बारे में बात करते हैं। फ्रेंचाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग कैसे चलेगा साथ में? अगर आपने एक सक्सेसफुल रिटेल आउटलेट खोला है और आपने सक्सेसफुली उसको आप प्रॉफिटेबल रन कर रहे हैं, नाउ यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल कि आपके एक आउटलेट की जगह पे अभी आपके 10 आउटलेट, 15 आउटलेट, 20 आउटलेट, 100 आउटलेट्स बने, तो प्रोबेबली द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज टू बिल्ड अ फ्रेंचाइजी नेटवर्क, राइट? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप फ्रेंचाइजी इंसाइडर जैसी कंसल्टेंसी फर्म के पास जाते हैं, आप अपना एक मॉडल क्रिएट करवाते हैं कि भाई हमारा ये बिजनेस है, इसको हम अगर फ्रेंचाइजी में देना है तो हमें कैसे इसको देना चाहिए। तो फ्रेंचाइज इंसाइडर जैसी कंपनी आपके लिए एक ऐसा मॉड्यूल क्रिएट करती है जिसमें लीगैलिटीज़ और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कवर हो जाती है और आप किसी एक थर्ड पार्टी, एक नए व्यक्ति को अपनी कंपनी का फ्रेंचाइज दे पाते हैं एंड देन दे बिकम योर पार्टनर। सो दैट्स फ्रेंचाइजिंग। इसकी ज़्यादा जानकारी आप समीर देसाई, दीनल जी और फ्रेंचाइज इंसाइडर टीम से ले सकते हैं। अब अगर आप सोचें कि आपने समीर जी को दीनल जी से कांटेक्ट करके आपने ये स्टार्ट कर दिया, बट उनका काम है आपको वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बना के दे देंगे, उनको उसके आगे जब आपको फ्रेंचाइज कन्वर्ट करनी होगी तो यू नीड टू हैव अ ब्रांड जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें। तो डेफिनेटली इट इज़ लाइक ये दोनों साथ में चलने वाले, इट्स पैरेलल प्रोसेस जिसमें आप ब्रांड भी बिल्ड करेंगे और फ्रेंचाइजी आउटलेट्स भी ग्रो करेंगे। एक आउटलेट अगर सूरत के किसी एक शहर में एक आउटलेट है वर्सेस उसी ब्रांड के 10 आउटलेट्स है तो उसकी ब्रांड परसेप्शन काफ़ी अलग होती है, उसकी बहुत ऊपर ब्रांड परसेप्शन होती है। तो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप फ्रेंचाइजिंग करके अपनी ब्रांड बिल्ड करें, दैट इज़ वन वे, और डिजिटल मार्केटिंग करके ब्रांड बिल्ड करें ताकि आपकी फ्रेंचाइजिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाए। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, इट गोज हैंड इन हैंड। सो डिजिटल मार्केटिंग आप करके आप ब्रांड बिल्डिंग करें, दैट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट रेवेन्यूज। अगर आपका एक आउटलेट है उसमें भी आप वॉक इन्स जनरेट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, आप ज़्यादा आउटलेट्स, मल्टीपल आउटलेट्स भी लोगों को बुला के और आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। Third and the most important, one of the most important crucial tool about expanding franchises aggressively is to generate leads for franchise development. लीड्स जनरेट करके आप आप फ्रेंचाइज इंसाइडर जैसे कंसल्टेंसी फर्म को दे सकते हैं और वो आपकी लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन इवेंचुअली यू कैन हैव फास्टर फ्रेंचाइज डेवलपमेंट। और लीड जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस है फेसबुक से और गूगल से, जिसके थ्रू आप इन अ वेरी फास्ट स्पेस फ्रेंचाइजीज को डेवलप कर सकते हैं। व्हाट्सएप एक टूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। बहुत लोग इग्नोर करते हैं, काफ़ी लोगों के अभी तक बिजनेस व्हाट्सएप भी नहीं है। जो लोग, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बिजनेस व्हाट्सएप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है
वो आप देख लीजिएगा। तो आप उस पर कैटलॉग बना सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स डाल सकते हैं, क्विक रिप्लाईज दे सकते हैं। लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर विच आर वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस वो इंटरैक्टिंग विद यू। फेसबुक सबसे ज़बरदस्त जो यूज़र बेस फेसबुक का है, हमने ऑलरेडी बात करी है। ये स्लाइड आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू नो हाउ यू कैन बिल्ड योर फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक पे जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसका प्रोफाइल बनता है, और जो कंपनी होती है उसका पेज बनता है। ये बेसिक चीज़ कई लोग मिस आउट कर जाते हैं और वो अपनी कंपनी का भी प्रोफाइल या अकाउंट क्रिएट कर देते हैं एंड देन दे स्टार्ट सेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये गलत तरीका है, फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो बेस्ट प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फेसबुक प्रोफाइल इज टू आपका खुद का प्रोफाइल एज अ बिजनेस ओनर, और आपके प्रोफाइल के थ्रू पेज क्रिएट कर दीजिए विच इज़ अ कंपनी पेज। और वो कंपनी पेज के एडमिन राइट्स आप शेयर करके आप अपनी एजेंसी को या अपने स्टाफ को या अपनी टीम को दे सकते हैं मैनेज करने के लिए। इंस्टाग्राम में सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो अभी चल रही है वो है इंस्टाग्राम रील्स। अगर आप रील्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज मिस कर रहे हैं। रील्स के अंदर मार्क जकरबर्ग ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है दे गोइंग टू इन्वेस्ट $1 बिलियन जस्ट टू प्रमोट एंड इनकरेज क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। हाँ, हमें कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना है, जो कंटेंट क्रिएटर के लिए अलग वर्कशॉप है, अलग सेशन है। हम फ्रेंचाइजी बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम कंटेंट क्रिएटर्स जो एंगेजिंग और एंटरटेनिंग कंटेंट बना रहे हैं उसके बीच में कुछ ऐसा कंटेंट बनाए जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो सके। ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप रील्स के थ्रू आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, रील्स के लिए काफ़ी लोग अभी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं इन मेकिंग रील्स, इन हाउ टू मेक रील्स पे भी हम वी आर ऑल्सो गिविंग वर्कशॉप्स। तो आप ये चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीड्स जनरेट करने के लिए। तो मैंने जो आपको बताया था कि लीड्स जनरेट करने का जो ऑब्जेक्टिव है, आप लीड्स जनरेट करने के लिए फेसबुक का एड्स का जो बिजनेस फेसबुक है वो यूज़ कर सकते हैं। और आप जो टाइमलाइन पे कई बार स्पॉन्सर्ड ऐड देखते होंगे, उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आइदर इट माइट बी टेकिंग यू टू अ वेबसाइट दैट इज कॉल्ड वेबसाइट क्लिक्स कैंपेन, और इट विल टेक यू टू अ फॉर्म विच ओपन्स अप इन योर फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप, और वहाँ पे आप फॉर्म भर देते हैं और वो फॉर्म सबमिट हो जाता है और फिर आपको उस कंपनी से फॉलो अप आता है। दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन। ये दोनों तरीके से आप बहुत ही अच्छे से लीड जनरेट कर सकते हैं और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेस है, इसके अंदर ऑटोमेशन क्रिएट करना है, उसके लिए आपको CRM टूल चाहिए। सो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं तो CRM टूल कंपलसरी यूज़ करना है, अदरवाइज आप उसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। Google My Business is very important for people who are developing franchises and locations। तो अगर आप एक लोकेशन पे है, आपका HO लोकेशन है और उसके बाद आपकी मल्टीपल लोकेशंस खुल रही है, तो आपको इट इज़ मस्ट दैट यू मेंशन देम इन योर Google My Business अकाउंट, और आप अपने एड्रेस को उसमें फ्रीज कर दें और प्रॉपर लॉक करके उसको वेरीफाई करवा लें। एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू गेट रिव्यूज़ एज वेल एज पीपल कैन ईजिली फाइंड यू ऑन Google Maps, क्योंकि कई लोग गूगल मैप्स पे सर्च करते हैं रेस्टोरेंट नियर मी, या गूगल पे सर्च करते हैं रेस्टोरेंट नियर मी, या व्हाट एवर बिजनेस वी आर इनटू नियर मी। तो उसमें आपको ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम लगेगा, क्योंकि गूगल एड्स के बाद जो जगह देता है वो मैप्स को देता है, लोकेशन को देता है, तो सर्च रिजल्ट्स में आप काफ़ी ऊपर आएंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गूगल माई बिजनेस वेल मेंटेन। यूट्यूब की हमने बात ऑलरेडी की है। यूट्यूब पे आप हाउ टू पे कंटेंट रखिए। यूट्यूब पे लोग इन्फॉर्मेशन और लर्निंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे सीखने के लिए जाते हैं, तो इसलिए आप अपने बिजनेस का जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाउ टू जो है वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट है तो आप अपने फूड की प्रिपरेशन या फूड की क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करते हैं, या उसके पीछे जाने वाली जो प्रोसेस है उसके बारे में बात कर सकते हैं। लॉट ऑफ आइडियाज आर देयर। सो फूड में तो फूड इंडस्ट्री इज लॉट मोर व्हेन इट कम्स टू फ्रेंचाइज, लॉट ऑफ पीपल फोकस ऑन फूड, बट बहुत सारे दूसरे रिटेल ब्रांड्स हैं या सब हैं, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं जो फ्रेंचाइजी यूज़ करते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को यूज़ करते हैं। सभी लोग अपनी बिजनेस की प्रोसेस और उसकी कल्चरल वैल्यूज़, एथिक्स के बारे में प्रमोट करिए, ताकि दूसरे लोग जो आपसे पार्टनर की तरह जुड़ना चाहते हैं, दे विल गेट मोर अट्रैक्टेड टू गेट एसोसिएटेड विथ यू। तो उसके लिए यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम का भी यूज़ कर ही सकते हैं, बट इन व्हेन इट कम्स टू वीडियो कंटेंट, यूट्यूब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। गूगल एड्स, गूगल पे आपने सर्च में एड्स होती है और डिस्प्ले में एड्स होती है। उसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किए हैं। मेजरली सर्च, जब भी कोई सर्च करता है तो हमारे बिजनेस के कीवर्ड्स के हिसाब से अगर कोई भी सर्च होती है, अगर हमारा बिजनेस वहाँ पे गूगल रिजल्ट में दिखाता है, तो इट रियली क्रिएट्स अ वेरी गुड ट्रस्ट एंड
यूजुअली गूगल पे आने वाले लोग हॉट इंक्वायरीज या हॉटर लीड्स कही जाती है फेसबुक और इंस्टाग्राम के कंपेयर में. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इफ़ यू हैव इट इन योर. क्योंकि अगर सूरत रीजन की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो यहाँ पे गूगल एड्स करने वाले या गूगल एड्स को यूज़ करने वाले लोग मतलब कस्टमर्स तो हैं, बट यू नो द एजेंसीज और द पीपल हु आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग सिनेरियो not promoting it because probably it's a little complex as compared to Facebook and Instagram, but it is very useful and you must use Google Ads in your marketing communication and mix. There are various formats of it. I'm not going to go into the details. डिस्प्ले एड्स जैसे मैंने आपको बताया अत्र तत्र सर्वत्र यानी हर जगह यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे आपको ऐड दिखती है, वो सब डिस्प्ले एड्स के अंडर आती है. सर्च एड्स भी जैसे आप देख सकते हैं कोई भी सर्च कर रहा है तो इस तरह से ऐड दिखती है और एडी लिखा होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड सर्च एड. इसकी डिटेलिंग में हम बिकॉज द टाइम इज लिमिटेड वी आर नॉट गोइंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये सब कुछ करने से पहले, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए. ऑल ऑफ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. इसमें लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव मेंशन्ड. इसमें से अगर आप मेजर ऑफ द थिंग्स इफ यू कैन कवर इट इन योर website, then it will be amazing and it will really help you build your brand and build franchisees. So that's all about the website features. Your feedback is important to us. You can mention that in the chat box of the auditorium. परमवीर जी उसको देख रहे हैं, आप वहाँ जो भी चैट बॉक्स पे आपको मैसेजेस आ रहे हैं परमवीर जी आप मुझे बताइए, अपन उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई क्वेरीज है तो. और उसके अलावा यस जी पलक जी मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? यस प्लीज. अजय अग्रवाल जी ने ये क्वेश्चन पूछा है. ही इज आस्किंग व्हाट शुड बी एन आइडियल बजट टू बी फिक्स्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग. बजट कुछ फिक्स करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए? फैंटास्टिक, वेरी नाइस क्वेश्चन अजय भाई, आपका प्रश्न बहुत सही है. ये इट्स ऑल अबाउट द साइज ऑफ योर बिजनेस. अगर आपका आप मार्केटिंग बजट जनरली यूजुअली क्या होता है कि मार्केटिंग बजट हम डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली अभी तक जो ट्रेंड था 2019 के पहले या 2020 के पहले स्पेसिफिकली लोग उसमें बहुत कम बजट स्पेंड करते थे. एंड पीपल थिंक कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता है, बट मैं सस्ता नहीं मानता हूँ इसको. मैं मानता हूँ कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेहतर है, बट बहुत कम बजट डालना इज़ नॉट एडवाइज. बिकॉज अगर आप 2-4 हज़ार रुपये ही डाल रहे हैं तो प्रोबेबली यू मे डेफिनेटली गेट अट्रैक्शन देयर, बट आपको अपना एक बजट लेके चलना चाहिए. अगर आप फ्रेंचाइजी एक्सपांड करना चाहते हैं तो ब्रांड बिल्डिंग में मेरे हिसाब से कम इफ़ इट्स वन सिटी, अगर आपका बिजनेस सिर्फ सूरत शहर के अंदर है तो मेरा ये निवेदन है कि आप कम से कम ब्रांड बिल्डिंग में 5,000 रुपये का बजट एलोकेट करिए और लीड जनरेशन करने में 5,000 रुपये का बजट एलोकेट. दिस इज द बूस्ट बजट विच आई एम सेइंग एंड ओनली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. ये प्राइमरीली स्टार्टिंग फेज है, इसके बाद आपको और बजट इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बट ये एक आप स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपको ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा. आई एम वेरी श्योर एंड देन यू कैन प्रोबेबली गेट इंक्रीज योर बजट. अच्छा, ये बजट हो गया सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को जो आपके क्रेडिट कार्ड से पे हो जाएगा. आप अगर एजेंसी के पास जाएंगे तो एजेंसी ही आपसे मिनिमम अच्छी एजेंसी जो होगी वो 20,000 to 25,000 अ मंथ आपका सर्विस चार्ज लेगी. सो प्रोबेबली दैट्स समथिंग विच यू नीड टू हैव. और अगर आप एजेंसी 20 से 25,000 की ले रहे हैं और फिर आप उसको बूस्ट बजट ही नहीं दे रहे हैं तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग टू हेल्प. वो एजेंसी आपका काम करती रहेगी, वो महीने का बिल बनाती रहेगी, आप पैसे देते रहोगे और आपको बिजनेस नहीं मिल रहा होगा. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू विल फ्रस्ट्रेट योरसेल्फ और सोचोगे कि यार डिजिटल मार्केटिंग कुछ काम का नहीं है, मुझे नहीं करना है, एंड देन यू विल स्टॉप. दैट हैज़ हैपेंड विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम. सो ये गलत तरीका है. यू हैव टू स्पेंड इन द बूस्ट बजट एज वेल. ऑर्गेनिक लोग बोलते हैं कि नहीं ऑर्गेनिक हम लोग ने ये किया वो किया, बट डियर फ्रेंड्स लिस्टिंग आउट देयर, कंटेंट मेकिंग एंड कंटेंट बिल्डिंग, अच्छा वायरल हो सके ऐसा कंटेंट बनाना इज मच मोर कॉस्टलियर देन स्पेंडिंग इन द बूस्ट पार्ट एंड जनरेटिंग बिजनेस आउट ऑफ. सो दैट्स समथिंग विच आई वुड लाइक टू से. आप एटलीस्ट 10,000 रुपये पर मंथ फॉर बूस्ट लेके चलिए. और अच्छा अगर आप इन हाउस कर सकते हैं, अगर इन हाउस करना चाहते हैं तो हमारी वर्कशॉप है खुद, जो एक बिजनेस ओनर को हम सिखा देते हैं, पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, कैसे कैंपेन करना है, कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है, सब कुछ उसके अंदर. तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आप कर सकते हैं. इसके अलावा कोई क्वेश्चन तरमवीर जी? हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लॉग जैसे वेबसाइट बनाने के टाइम पे उन्होंने देखा है कि कई वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग्स के सेक्शन, आपके भी आई थिंक स्क्रीन में ब्लॉग्स लिखा होता, तो वो पूछ रहे हैं कि इससे किस हद तक डिजिटल मार्केटिंग में फर्क पड़ेगा, क्या उन्हें वो सेक्शन ऐड करना चाहिए, वो ये पूछ रहे हैं क्या उससे कुछ ट्रैक्शन में कुछ मदद मिलती है. क्योंकि उन्होंने ही सेइंग कि ही हैज
heard a lot के ब्लॉग से भी आपको ट्रैक्शन मिलेगा, पर किस तरह से उन्हें वो समझ नहीं आ रहा कि वो Yes. किस तरह से उन्हें हेल्प आउट करेगा. राइट. सो ब्लॉग एक बहुत ही ज़बरदस्त डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है. ब्लॉग और ब्लॉग यानी वन ब्लॉग इज द टेक्सचुअल ब्लॉग. बेसिकली वीडियो ब्लॉगिंग को व्लॉग कहा जाता है, वीलॉग कहा जाता है. सो ये दोनों चीज़ों के बारे में मैं क्विकली बता देता हूँ. ब्लॉग वो होता है जिसमें आप एक प्रश्न का जवाब देते हैं आपकी वेबसाइट पे. वो प्रश्न आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है और आपके बिजनेस के कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री सर्विसेज के कनेक्टेड भी हो सकता है. बट मेरा ये मानना है कि पहले आप इतने ब्लॉग लिखें जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है. जैसे मैंने लिखा है कि भाई बिजनेस व्हाट्सएप को कैसे यूज़ कर सकते हो आप, या यू नो ईमेल आईडी जैसे @डोमेन अपना कंपनी का होना चाहिए, वो कैसे बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसके बारे में मैंने ब्लॉग लिखा है. तो ये मैंने अपने बिजनेस के साथ कनेक्टेड चीज़ों पे ब्लॉग लिखा है. तो लोग उस पे आके उसको पढ़ेंगे तो दे विल बी एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड दे विल बी एबल टू ट्रस्ट मोर ऑन अस टू हायर अस एज देयर कंसल्टेंट्स. ये एक ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे का. अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि मैंने ब्लॉग लिखा और यू नो मेरे सिर्फ 50 ही लोगों ने उसको पढ़ा है. सर, तो 50 लोग भी बहुत बड़ा नंबर होता है. इट इज़ नॉट कि हम कोई टाइम्स ऑफ इंडिया या NDTV वेबसाइट नहीं है या कि जिसको हज़ारों लोग चाहिए, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है वो हज़ारों लोगों को बुला के वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना. हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हमारा क्लाइंट हमारा वेबसाइट पे आए और ब्लॉग पढ़े और इवेंचुअली उसमें से ज़्यादा लोग आते हैं. अगर आपका ब्लॉग इतना अच्छा है और ज़्यादा लोग आते हैं तो दैट्स ऑलवेज वेलकम. बट कई लोग डिसहार्टन हो जाते हैं ब्लॉग के नंबर ऑफ व्यूज़ देख के. ये गलत स्ट्रेटजी है. एक चीज़ समझिए, ब्लॉग का दो मायने हैं उसके. एक है कि लोग आपकी वेबसाइट पे आके उस प्रश्न का जवाब ढूंढे, और दूसरा गूगल के लिए. मैक्सिमम ब्लॉग गूगल के लिए लिखे जाते हैं, सर्च इंजन के लिए लिखे जाते हैं, जिससे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एडवांटेज मिले. तो दोनों तरीकों से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल रियली बिल्ड योर सेल्फ, योर कंपनी एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट. कि भाई ये कंपनी का नॉलेज बहुत अच्छा है, इसलिए ब्लॉग का आप यूज़ करिए, डेफिनेटली करिए. So thank you, Palak sir. I think one more last slide we have. So everyone listening out there, if you want to know and learn more about digital marketing, और आप अगर इसको अपने मतलब जैसे मैं इसको समराइज करना चाहता हूँ लास्ट 2 मिनट्स चलते. यूजुअली बिजनेस ओनर ये सोचते हैं, 80% बिजनेस ओनर्स का मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग में उनका पैसा टूट रहा है या डिजिटल मार्केटिंग बहुत महंगा है. यू नो दे हैव अ कन्फ्यूजन कि 5,000 दे एजेंसी को या 15,000 दे या 50,000 रुपये दे. दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी ऑन इट. उनकी टीम जो है वो फिजिकल मार्केटिंग में रेडी थी, बट अब वो डिजिटल मार्केटिंग में रेडी नहीं है, या उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या बजट डाले. जैसे अपना एक प्रश्न ऑलरेडी आया, क्या बजट डाले डिजिटल मार्केटिंग में, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है. तो ये सारी कन्फ्यूजन की वजह से लोगों को एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा है. किस एजेंसी को काम दे, किसको ना दे, इसकी वजह से एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा है. तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम लेके आए हैं, विच इज़ पावर पैक वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग. आप ये वर्कशॉप करेंगे एज अ बिजनेस ओनर और आपकी पूरी टीम, यू नो अप टू 25 पीपल. हम आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसमें कैंपेन्स से लेके एवरीथिंग, ऑल द सीक्रेट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विल बी रिवील्ड. उसके अलावा हम आपको बहुत सारे टूल्स देने वाले हैं, जैसे कि सोशल मीडिया कैलेंडर, आप कैसे अपना पूरा प्लानिंग करके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको देंगे. उसके अलावा 3 सेशंस आफ्टर द वर्कशॉप भी हम आपको देंगे फॉर हैंड होल्डिंग. तो ये करके आप अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और करीब 1 साल तक आप चला सकते हैं विदाउट एनी एजेंसी हेल्पिंग यू. हाँ, ये ग्राफिक्स और कंटेंट के लिए शायद आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी, वो भी हम आपको गाइड कर देंगे कैसे कर सकते हैं आप. इसके अलावा ये वर्कशॉप के बाद आप खुद लीड्स जनरेट कर सकते हैं और फिर उसको क्लोज करके कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ्रेंचाइज इनसाइडर जैसी फ्रेंचाइजी कंपनी को आप इन कंसल्टेंट्स को दे सकते हैं लीड्स, और वो आपके लिए क्लोज कर सकते हैं. एंड मैं अगर हमारे बारे में बताऊं तो सर, एवरीवन आउट देयर, एक कंपनी से मतलब एक प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो एक दुकान में बिकती है, वैसी प्रोडक्ट से लेके ऐसी प्रोडक्ट जो 1 लाख दुकानों में बिकती है, फ्लैट से लेके ऑटोमोबाइल से लेके हेल्थ सेक्टर से लेके कई सारे सेक्टरों में हमने पिछले 7.5 साल से डिजिटल मार्केटिंग में काम किया है, जिसमें कई सारी यू नो नेशनल कंपनीज है, जैसे भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनीज है, सुजुकी जैसी कंपनीज हैं. उसके अलावा हमने एक शहर में बिकने वाली प्रोडक्ट से लेके 16 शहरों में बिकने वाली प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले लीजिए, उसके लिए हमने काम किया. तो 100 से भी अधिक कंपनियों के साथ काम करने का अनुभव को निचोड़ के हमने ये पावर पैक कैप्सूल वर्कशॉप बनाया है, जो सिर्फ 3 से 4 घंटे में आपको पूरा नॉलेज दे देगा. बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो आपके पास समय नहीं है, इसलिए ऐसा एक कैप्सूल कोर्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम लगेगा, विच यू कैन टेक एंड you know build your digital dukaan. That's it from my side. This is Palak Madhwani from Monkey Ads. Thank you so much. Connect with me via the QR code available there, or you can search me online, and do give a recommendation on LinkedIn if you've liked something out of this course. Thank you so much.
you.